کہ وہ کس طرح ہندو بھائیوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیات نازل کیسی ہوئی اور اس کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہاں جو غیر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستھتیوں میں آئی، یہ جب جانیں گے تبھی صحیح ارتھ معلوم ہوگا۔ تو یہ جاننے کے بعد میں نے ایک دوسری کتاب لکھی، اسلام آتنک یا آدرش، یعنی اسلام میں آتنک نہیں، آدرش ہی آدرش ہے۔ اور اس کا ہم دوسرا ادھارن اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے۔ ایک بار میں جا رہا تھا، ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی، میں نے کہا اسلام میں آتنکواد ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنیٹ سے کہ آج سے 100 سال پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ایک بھوتپور جو پردھان منتری ولیم گلیڈ اسٹون تھے، انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ نیگیٹو چیزیں کہی تھی۔ تو مجھے بالکل اپنی بات یاد آ گئی کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ولیم گلیڈ اسٹون نے بھی غلط سمجھا، اور اس کے ذمہ دار وہ نہیں، انواد کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا۔ تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ بہن جی کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ماتاؤں اور بہنوں سے مشکل نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے وجود سے مشکل ہے، اور نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ میں آپ سب سے ونتی کرنا چاہتی ہوں، یاد رکھو ان کے 5 استمبھ، جس میں کہا توحید، ایک ہی ایشور ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے سرو دھرم سمبھاو، ارے لعنت ہے ہمارے اوپر، 1400 سال سے جن لوگوں نے کیول قتل عام مچایا ہو، آج بھی ہم ان کو دھارمک کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے، وہ ہر استر پر کریں گے، وہ داڑھی رکھ کر کے بھی کریں گے، وہ پینٹ شرٹ پہن کے کریں گے، وہ عربی بول کر کے کریں گے، وہ ہندی بولیں گے، وہ انگلش بولیں گے، لکشیہ کیول ایک ان کا اسپشٹ ہے، وہ ہے جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے اللہ کا کام رکے گا نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، جنہوں نے بولا رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام، اور اگلی پنکتی جوڑ دی ایشور اللہ تیرو نام، لعنت ہے ہمارے اوپر، ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہیں۔ قرآن کے نام پر زہر پھیلانے والی بہن جی کا جواب سوامی جی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا۔ تو میں نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا، وہ انگریزی ہندی میں ہے، وہ چھپ چکی ہے جامعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے، انگریزی میں اسلام اینڈ آرٹ آف لیونگ کے نام سے انگریزی میں بھی چھپے گی۔ اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکت پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملے بازی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا، ایک جملہ پھینک دیا۔ یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ انسانیت کے دشمن ہے، کام، کرودھ، مد، لوبھ، موہ، یہ دشمن ہے، اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے۔ بہن جی نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ایشور اور اللہ الگ الگ ہے، جو سمجھ سے باہر بات ہے، جو جہالت کی حد ہے۔ ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا۔ ارے ہمارا ایشور دیالو ہے، کرپا کرتا ہے، پرنتو اللہ کا آدیش ہے، کہاں پڑھو گے؟ قرآن پڑھو گے، اللہ کا صاف آدیش ہے، جو میرے کو نہیں مانتا، جو جبرائیل میکائیل کو نہیں مانتا، جو محمد کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور کافر واجب القتل ہے، وہ کٹنے یوگیہ ہے۔ اتنا ہی نہیں کہا جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ان کو گھات لگا کر کے مارو۔ پڑھو سورہ توبہ، پڑھو سورہ البقرہ، ساری کی ساری قرآن کی ساری یہ آیتیں پڑھ کر کے دیکھو، آپ کو صاف اسپشٹ پتہ چل جائے گا۔
बहन जी इस्लाम के बारे में न जाने क्या क्या कह रही हैं, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतों की कितनी इज्जत है और उसकी नजर में कैसे सारी औरतें बराबर हैं। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीवी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया, तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। स्वामी जी औरतों के ताल्लुक से क्या पैगाम दे रहे हैं और हमारी बहन जी इसके बिल्कुल खिलाफ बोल रही हैं, वो डरा रही हैं, धमका रही हैं, इस्लाम की गलत तशरीह कर रही हैं। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक माता का बलात्कार करने के लिए 10 जिहादी थे और वो 10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस्लाम में बताया गया है कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जा सकता है। वो क्या तारीफ बयान कर रहे हैं ये भी समाप्त कीजिए। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो और जब माफ कर दो तो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर दो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। बहन जी का जी जब नमाज और कुरान से नहीं भरा तो उन्होंने हज पर भी सवाल उठा दिए। हज जहाँ एक बाल का टूटना भी गुनाह है कि जिसकी वजह से बाल साफ कर दिए जाते हैं, लेकिन इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता
याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। बहन जी के मुकाबले अब जरा फिर स्वामी जी को सुन लीजिए कि वो किस तरह हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तारीफ बयान कर रहे हैं कि जिसके जरिए कुरान, नमाज, रोजा, हज वगैरह हम तक पहुंचा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपके खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहाँ चला चुप जाए उसे माफी, जो वहां चुप जाए उसे माफी, जो वहां चुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह। बहन जी कह रही हैं कि दर्द को भी दर्द आएगा, ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी। यानी वो खौफजदा कर रही हैं पूरी कम्युनिटी को, पूरे हिंदू माशरे को। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को। ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय कर। बहन जी के बरक्स स्वामी जी कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी मसाइल हैं उनका हल अगर कहीं है तो वो कुरान मजीद में है। मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया न हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका राज समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। थैंक यू। बहरकैफ हमने आपकी खिदमत में एक मौज़ना पेश किया है। अब आपको खुद फैसला करना है कि सही क्या है, सही कौन है, झूठा कौन है, कौन माशरे में अमन चाहता है और कौन चाहता है कि माशरे में नफरत भर जाए।